Hello, everybody, and welcome to Dr. Sam's Anatomy classes. Myself, Dr. Azmi Mohsen, and today I'll be discussing this important topic. Here we're going to discuss about the differences between the lower motor neuron and upper motor neuron paralysis. अब ये इम्पोर्टेंट है, मेक श्योर यू लर्न दिस बाय हार्ट. ये अभी तुम्हारा मेडिसिन, सर्जरी, पोस्टिंग्स में बहुत काम आएगा, पीडियाट्रिक्स में भी काम आएगा. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तुम्हारे एग्जाम में, एनाटमी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का. दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस. ठीक, तो अभी जो ये तुमने देखा पाथवे, दैट वाज ऑल अबाउट अपर मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम द सुप्रास्पाइनल न्यूक्लियस टू द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, and from the anterior horn of the spinal cord they will reach to the effector muscle, that is lower motor neurons. And some authors call it this ascending pathway into 3 order neurons. They say that from the supraspinal nucleus to the internuncial neurons, it's first order descending neuron, first order motor neuron. Then internuncial neurons, they call it as second order neurons. And from internuncial, because internuncial stimulates this now the alpha and gamma motor neurons, the lower motor neurons in the anterior spinal cord, anterior of the spinal cord. So they call them, which emerge into this ventral root of the spinal nerve, they are the third order neurons. Some authors have written it as that the descending pathway is also into 1, 2 and 3 order neurons. Okay? But when we'll talk about upper and motor lower motor neurons, we do not consider talking about internuncial neurons. We simply say the fibers coming from supraspinal nucleus up to the anterior horn, that is upper motor neuron, and from the anterior horn which emerge out through the ventral root of the spinal nerves, they are the lower motor neurons. ठीक, अब इंजरीज की बात करते हैं. ठीक है, इसमें इंजरी दोनों में हो सकती है. पेरिफेरल के तो बहुत सारे, ट्रॉमा इज आल्सो वन रीजन, लाइक या कोई ट्यूमर या एनी हाउ इस्चीमिया एंड नर्व कंप्रेशन, न्यूरोप्रैक्सिया, न्यूरोन्टोमेसिस, एक्सोन्टोमेसिस. ठीक है, तो लॉट ऑफ नर्व रिलेटेड कंडीशंस मिलेंगी. इवन डायबिटीज एंड ऑल, बहुत सारी वो होती हैं conditions in which lower motor neurons get involved. But in case of upper motor neurons also, because of arterial causes, because of ischemia, clot, cerebral hemorrhage, ठीक है, there are also chances of injury to the upper motor neurons. ठीक, so what will happen now, the differentiation between upper and lower motor neurons we are talking about. Let's see what will happen if in case the lower motor neurons are injured. तो इसमें क्या होगा अगर इंजरी होती है, कंपैरिजन बिटवीन लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस. ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी होगी ऑब्वियसली, तो नर्व के लिए कोई इंपल्स नहीं जाएगी. अगर हमारे पास नर्व स्लाइसिंग हो गई है, ठीक है, जिसे कहते हैं न्यूरोन्टोमिसिस, नर्व कट गई, एकदम स्प्लाइस्ड, so obviously there will be no impulse reaching to the muscles, so there will be complete abolished muscle tone is abolished, है ना. एंड डिपेंड्स कि न्यूरोप्रैक्सिया टाइप ऑफ इंजरी है, जैसे ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कंडक्शन हो जाता है, तो उसमें इट कैन बी रिगेन, राइट. बट इनिशियली हम बात कर रहे हैं लो मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में कि इसमें पैरालिसिस होगी, इंजरी होगी, तो मसल टोन विल बी अबॉलिश्ड, because muscle tone also is maintained, अभी बताया, by the extra pyramidal tract as well as ये जो सेरिबेलम है वहां से भी फाइबर्स आते हैं. so मसल टोन जो है वो अगर लोअर मोटर न्यूरॉन चला गया तो कोई इंपल्स ही नहीं जा रही ना, तो मसल टोन इज अबॉलिश्ड. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपर मोटर न्यूरॉन की अगर इंजरी होती है, but because of those so much of internuncial neurons, like हम अगर corticospinal tract की बात करें, इंजरी हो भी गई, but I told you parallel रास्ते तो है ना, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक से इंपल्सेस पहुंच रही हैं.
So muscle tone, rather, क्योंकि to compensate for the losses, muscle tone is actually increased. ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं flaccid paralysis, यानी कि the limb becomes, the muscle becomes flaccid. ठीक है, the reverse is happening in upper motor neurons because of increased muscle tone. There leads to be a spastic paralysis. अकड़ जाएंगे हाथ पांव उंगलियां digits whatever, जिस चीज में paralysis हुई है, that portion that of the limb, that part of the body undergoes into a spastic contraction. Here, I mean, if you see the regular life में, disability point of view, if you think, both are actually disabling you, both are actually leading to a disability. You even if this spasm of muscle is increased, then also you'll not be able to work, and even if it becomes flaccid, then also it's not working. ठीक, so both of them leads to deformities. मस्कुलर एट्रोफी लेटर ऑन, क्योंकि मसल पे जब नर्व इम्पल्सेस नहीं पहुंचती हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी खत्म हो जा रही है, विद टाइम दे विल लीड टू थिन आउट, वीकन आउट, यानी कि उसकी जो मसल है, उसका जो नरिशमेंट है, दैट आल्सो विल डाई आउट विद टाइम. यू विल फाइंड आउट थिन्ड आउट मसल्स. दैट इज कॉल्ड मसल एट्रोफी विल बी सीन इन lower motor neuron later on. Upper motor neuron में, because the tone is increased, right, the impulses are reaching, because that has to be in a spastic contraction, the impulses पहुंच रही हैं, but remember, not in a controlled manner. यानी कि जैसे मैंने बताया, अगर flexors and extensors both are being stimulated at that spinal segment, तो वर्क किस तो नहीं होगा ना. इफ यू वांट टू फ्लेक्स योर डिजिट्स एंड एट द सेम टाइम मीडियन नर्व एंड रेडियल नर्व बोथ आर बीइंग स्टिमुलेटेड, तो फिर डिजिट्स को फ्लेक्स करना आसान नहीं होगा. you have like extensor muscles by supplied by radial nerve, at the same time flexors of the interphalangeal joints by median nerve. So both the muscles being stimulated, तो वही तो हो गया ना ये स्पाज्म, वर्किंग तो नहीं हुई स्मूथ. तो उस तरह में क्या है कि इंपल्स पहुंच रही है, तो मसल टोन मेंटेन्ड रहेगी एंड मसल एट्रोफी नहीं होगी. इस बंदे के हाथ पांव सूखेंगे नहीं, जो पैरालाइज्ड एरिया है. इसमें क्या होगा, यू विल फाइंड वीकनिंग ऑफ द लिम्स. ध्यान से समझ लेना, बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल रीड, उसी टाइम सबसे ज्यादा समझ में आता है. अगर फर्स्ट टाइम तुमने रफली रीड कर लिया है जल्दी जल्दी में, तो फिर सेकंड टाइम थर्ड टाइम में इतना ग्रास्प नहीं करते. तो फर्स्ट टाइम अच्छे से समझते रहो, पढ़ रहा हूं मैं, सुनते रहो, उसके बाद एक बार रीडिंग लगा देना खुद से. देन रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन इन सीन, वही चीज है, रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन. जब डिजेनरेशन हो जाएगी इन मसल्स में, तो धीरे धीरे या थिंड आउट, वीकनिंग, यहाँ तक कि ओवरलाइंग स्किन वगैरह वो भी ड्राई आउट करने लगती है, बिकॉज जो नर्व जा रही है लोअर मोटर में, उसमें ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स भी होते हैं, राइट. And autonomic nerve fibers through that nerve also supplies the blood vessels to that area. ठीक है, अब जैसे रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है, तो ये जो पामर आर्टीरियल आर्च है, देयर आर वेसल्स आल्सो इन द पाम, उसके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो डायलिटेशन के लिए जो फाइबर्स है, वो भी तो नर्व्स के थ्रू आ रहे हैं, राइट. तो जब आर्टरियल सप्लाई डिमिनिश हो जाएगी, तो फिर वहां पे स्केलिंग ऑफ द स्किन शुरू हो जाएगी, ड्राइंग ऑफ द स्किन शुरू हो जाएगी, ये सब प्रॉब्लम्स और आती थी. तो रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन विल बी सीन हियर. तो रिएक्शन ऑफ डिजेनरेशन विल नॉट बी सीन इन दिस. ठीक, अपर मोटर न्यूरॉन इंपल्स आ रही है, मसल टोन मेंटेन है इसमें, ठीक है, बराबर टोन इंक्रीज्ड. देन टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट. सिंपल सी बात है, जो नर्व सप्लाई है मसल की वही कट गई है, तो अब उसमें इंपल्स नहीं जाएगा, तो टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट. यहां पे रिवर्स है, देखो, जब टोन इंक्रीज हो गई तो एनी टेंडन रिफ्लेक्सेस रादर विल बी एग्जैजरेटेड, नॉर्मल से ज्यादा एग्जैजरेटेड हो जाएंगे. ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, टेंडन ऑफ नी जर्क देखा कभी, अपर मोटर न्यूरॉन में जरा सा टैप करोगे बिल्कुल फुट एकदम किक मारता है.
तो दैट इज कॉल्ड एग्जैजरेटेड हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सेस विल बी एग्जैजरेटेड इन अपर मोटर न्यूरॉन्स लीजन में। लिमिटेड डैमेज एक्सटेंसिव, अब देखो यहां अभी तक यू वर फाइंडिंग कि इसमें ज्यादा नुकसान चल रहा था, है ना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लिमिटेड डैमेज है, प्रिसाइज डैमेज है। अगर रेडियल नर्व रिस्ट यानी कि रेडियल नर्व लेट्स से कि बिहाइंड द एल्बो और अबव द एल्बो डैमेज होती है तो एक्सटेंसेस बिलो द एल्बो ही तो जाएंगे सारे, ठीक है, यानी यू विल हैव अ रिस्ट ड्रॉप। तो एक ही पर्टिकुलर एरिया में आपको प्रिसाइज, जिसे कहते हैं, याद करो वो सिंपैथेटिक ने पैरासिम्पैथेटिक वाली जो बात बताई थी, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर वेरी स्मॉल, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्ग, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में डिफ्यूज रिस्पॉन्स आता है, जैसे ही रेज हुआ, एकदम गुस्सा आया तो यू नो टेकिकार्डिया, ब्रेथलेसनेस, नेजल डायलेटेशन ऑफ द नेयर्स, डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, और साथ साथ यू नो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्फिंक्टर्स। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में बहुत स्मूथ होता है, लाइक यू नो यू सिट फॉर अ मैच्योरेशन, देन एवरीथिंग इज बीइंग नॉर्मल, the only function is being urination happening at that time. So precise, तो यहाँ पे भी यही वाली बात आ गई, क्योंकि एक पर्टिकुलर नर्व का डैमेज हो रहा है लोअर मोटर न्यूरॉन में, तो वही पर्टिकुलर मसल या वो ग्रुप ऑफ मसल का ही तो नुकसान हो रहा है। इसमें क्या है, हायर सेंटर पे हो रहा है ना, ये यू नो विद इन द सीएनएस इंजरी हो रही है अपर मोटर न्यूरॉन की, तो डैमेज विल बी एक्सटेंसिव, यानी उस सेगमेंट पे जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सब जा रहे हैं, ठीक है। सो डैमेज विल बी एक्सटेंसिव, ये चीज यहां पे मिली तुम्हें कि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इप्सिलेटरल होगा, ये मोस्टली कॉन्ट्रालेटरल, इसका कॉन्सेप्ट अभी तुमने कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में ही समझ लिया है भाई। वंस द न्यूरॉन इमर्जेस आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द वेंट्रल नर्व रूट्स, तो स्पाइनल कॉर्ड से तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, बिकॉज द इफरेंट पाथवे। अब अगर हमने नर्व स्प्लाइस भी कर दी तो फिर इप्सिलेटरल ही होगा टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स। रिमेंबर बेल्स पैरालिसिस is lower motor neuron lesion of the facial nerve, स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन के बाहर कोई इंजरी होती है तो दैट पर्टिकुलर हाफ, द सेम इप्सिलेटरल हाफ ऑफ द फेस विल बी पैरालाइज्ड। तो लोअर मोटर न्यूरॉन में द डैमेज इज इप्सिलेटरल, ठीक। देन इसमें अभी देखा तुमने, अगर मान लो कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर जैसे लेट्स से कि कोई भी लेवल पे इंजरी होती है एंड देयर लाइक से अगर हम लोअर लिम्स की बात करें तो यू नो द स्पाइनल सेगमेंट सप्लाइंग द लोअर लिम्ब, they are actually present in the conus medullaris and a little above, let's say T11, T12, L1 vertebral level. That is the place where you find ki lumbar enlargement. Then उस लेवल पे अगर कोई इंजरी होगी तो फिर वहां से यू नो जो फाइबर्स हैं, यानी कि अभी यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल वर्ड यूज क्यों किया गया है, लेट मी टेल यू। ये जो इंजरी हो रही है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे बात हो रही है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, यानी कि बिफोर डिकसेशन। अगर बिफोर डिकसेशन यानी पिरामिडल डिकसेशन जो हो रहा है लोअर मेडुला पे, सो लाइक यू नो सेरेब्रल आर्टरी, जैसे अभी बताया था, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाइज द सप्रोलेटरल सरफेस, उस पे कोई इन्फेक्शन हो गया राइट साइड में तो उसका डैमेज किधर शो होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा लेफ्ट साइड में, अपोजिट हाफ में, ठीक है। बिकॉज 80% फाइबर्स फ्रॉम द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स are being decussated at the level of medulla and are reaching to the contralateral half of the spinal cord. तो अगर राइट साइड पे डैमेज हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे, यानी कि बिफोर डिकसेशन, सो द डैमेज विल बी contralateral. The results of the injury will be reflected in the muscles of the contralateral side in case of injury of upper motor neurons before decussation.
सो दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, देखो वर्ड लिखा गया है, नॉट सिंपली कॉन्ट्रालैटरल, मोस्टली मीन्स जरूरी नहीं है। अगर जैसे मैंने बताया ना डिकसेशन के बाद होगा, जैसे कि मैंने अभी बात इनिशिएट करी थी कि लंबर स्वेलिंग है स्पाइनल कॉर्ड में, इंजरी हो गई लेट्स से कि T11 लेवल पे, तो फिर इप्सिलेटरली होगा। 80% फाइबर्स तो अब वहां से उसी एंटीरियर हॉर्न में इनर्वेट कर रहे हैं ना, ओनली 15% वर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, ठीक है। तो फिर इसी वजह से देखो स्टिमुलेशन कंप्लीट लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 15% तो उसी सेगमेंट पे एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से आ रहे थे ना, तो 15% फाइबर्स तो इंटैक्ट रहे ना। तो इस वजह से क्या है कि मोस्टली वर्ड यूज किया गया है कॉन्ट्रालेटरल, क्योंकि अगर स्पाइनल सेगमेंट के लेवल पे होगा तो भी कंप्लीट सेंसरी लॉस नहीं होगा, सेंसरी या मोटर कंप्लीट मोटर लॉस नहीं होगा। बट सुप्रा न्यूक्लियर जैसे कि सुप्रा डिकसेशन बिफोर द डिकसेशन ऑफ फाइबर्स बिफोर लोअर मेडुला इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंजरी होगी तो इट विल बी मोस्टली कॉन्ट्रालेटरल। बेबेनिस्की साइन ये बहुत बार पढ़ चुके हो तुम, बताया गया है S1 स्पाइनल सेगमेंट को इलिसिट करते हैं फ्रॉम द हील टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट, यू नो, देन दे विल बी नॉर्मल जो होता है, देयर विल बी फ्लेक्शन ऑफ टोज एंड ग्रेटर टो एज वेल, बट इन केसेस ऑफ Babinski positive, there will be fanning of the little toes and dorsiflexion of the greater toe. That is called Babinski sign positive, which is a sign of upper motor neuron paralysis. And Babinski sign negative होगा lower motor, भाई इसमें रिफ्लेक्स ही नहीं आता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, रिफ्लेक्सेस तो इसमें खत्म हो जाते हैं ना, टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट। तो चाहे बेबिनिस्की हो, चाहे एंकल हो, चाहे नी जर्क हो, रिफ्लेक्सी तो है ये भी, तो बेबिनिस्की साइन विल बी नेगेटिव, बट हियर इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ हाइपर रिफ्लेक्सिया, एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट ड्यू टू डैमेज टू मोटर पाथवे। सिंपल सी बात है, वो पहले ही बता दिए कि जब नर्व सप्लाई ही कट गई मसल के लिए तो ऑल सुपरफिशियल एंड डीप रिफ्लेक्सेस विल बी लॉस्ट। इसमें क्या है कि अपर मोटर न्यूरॉन में सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लाइक एब्डोमिनल reflex, cremasteric reflex, plantar are lost due to damage to the corticospinal tract. ठीक, देखो ये एग्जैजरेशन जो आ रहा है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने बताया ना रिफ्लेक्सेस आर एग्जैजरेटेड इसमें, लेकिन यहां पे लिख दिया इन्होंने कि सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लाइक एब्डोमिनल, क्रीमास्ट्रिक, प्लांटर आर लॉस्ट ड्यू टू डैमेज टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। एज जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट जो है वो बेसिक्स मेंटेन करता है बॉडी को, यानी आपको इरेक्ट पोस्चर में खड़े रखेगा, एंटी ग्रेविटी, यू आर नॉट फॉलिंग डाउन। मैंने एक बार और पहले बात करी थी, इफ यू आर डेड यू फॉल डाउन, if you're standing that means your nervous system, your extra pyramidal activity is happening, your muscle tone, your balance is, you know, ये सब बता चुका हूं, अभी सब मेंटेन करके रखे हुए आपकी muscle tone and posture, so that means extra pyramidal is awake and you are standing erect. तो that means कि ये deep inside work कर रहे हैं muscles के लिए, ठीक है। बट ये जो superficial reflexes हैं वो corticospinal tract ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं वो चले जाएंगे अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में, लेकिन जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है उसकी वजह से जो डीप रिफ्लेक्सेस हैं वो एग्जैजरेटेड हो जाते हैं। अभी बताया नी जर्क हो गया, बाइसेप जर्क हो गया, ब्रेकियोरेडियालिस का जर्क हो गया, टेंडो एक्लिस का जर्क हो गया, दीज जर्क विल बी एग्जैजरेटेड इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, याद रखना। लेकिन सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस जैसे एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, दे विल बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ द कॉर्टिको डैमेज टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक। देन मे अफेक्ट सिंगल मसल ग्रुप
एज इन पोलियोमाइलिटिस एंड बेल्स पाल्सी। ठीक, ये भी तो मैंने बताया, पोलियोमाइलिटिस तो मैं पहले ही बढ़ा चुका हूं मैं, वायरल इन्फेक्शन इन्वेडिंग द एंटीरियर हॉर्न सेल्स, ये होता है ना पोलियोमाइलिटिस। आफ्टर बीइंग इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। तो बेल्स पाल्सी या ये पोलियोमाइलिटिस देयर एग्जांपल ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो इसमें सिंगल ग्रुप ऑफ मसल्स जिसके लिए वो सप्लाई थी, वो मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। ठीक, इसमें क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन में अफेक्ट्स मेनी ग्रुप ऑफ मसल्स एज इन हेमीप्लेजिया, हाफ ऑफ द कंप्लीट हाफ ऑफ द पैरालिसिस, हाफ ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस हो गया। डैमेज टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट रिमूव्स द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, रिजल्टिंग इन बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव। ठीक है, अभी ये देखा अपर मोटर न्यूरॉन्स में मैनी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, एक ही ग्रुप ऑफ मसल पैरालाइज होगी जिसको इनर्वेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो पूरा ट्रैक चला आ रहा था, ऊपर से इंजरी हो गई अपर मोटर न्यूरॉन में। ठीक है, तो कंप्लीट हाफ ऑफ द अपोजिट साइड तो जाएगा, अपोजिट साइड हेमीप्लेजिया हो जाएगा, मेनी ग्रुप्स में एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट इसमें क्या है कि जो हाइपर रिफ्लेक्सिया का जो कॉजेज बताया है, क्योंकि इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट रिमूव्स द एक्चुअली कॉर्टिकोस्पाइनल मैंने बताया ना, एक वॉलंटरी स्किलफुल एक्टिविटीज के लिए होता है, एंड वॉलंटरी स्किलफुल एक्टिविटीज कैन बी डन ओनली व्हेन यू आर इनहिबिटिंग द एंटागोनिस्टिक्स, राइट। एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करेंगे, फ्लेक्सर्स को स्टिमुलेट करेंगे, तभी तो एक स्मूथ फंक्शनिंग आएगी। ठीक है, तो डैमेज टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट रिमूव्स द इफेक्ट इनहिबिटरी इफेक्ट्स, जिसकी वजह से क्या है, जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं वो हाइपर उसमें वो रिफ्लेक्स और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा, रिजल्टिंग इन बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग इट एक्चुअली is stimulatory to that particular flexor group of muscles, as well as it is inhibitory to the antagonistic muscles of that same joint. और ये काम इंटरनेशनल न्यूरॉन्स भी कर रहे थे उस टाइम, हेल्प कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम आई टेल यू रूब्रोस्पाइनल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट भी इसमें मीडिएट करता है स्मूथ फंक्शनिंग। लेकिन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अगर स्लाइस हो गया है तो फिर ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो आ रहा है एक्सटेंसर्स पे वो चला जाता है, और उसकी वजह से बोथ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर दे गेट स्टिमुलेटेड, तो कॉन्ट्रैक्चर वाला स्टेज आ जाता है, जैसे कहते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। So there is loss of control on lower motor neurons, which becomes hyperactive, leading to spastic paralysis. अब एक चीज समझ में आ गई है, तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है, फ्लेक्सस को स्टिमुलेट करेगा, अल्फा एंड गामा न्यूरॉन्स जो फ्लेक्सस के लिए हैं, एट द सेम टाइम एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करेगा। अब ये स्लाइसिंग हो गई अपर मोटर न्यूरॉन में, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कट गया है। ठीक है, देयर इज इंजरी टू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हायर लेवल पे, बट एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट अगर इंटैक्ट है, वो तो स्टिमुलस जा रही है, और जो कॉर्टिकोस्पाइनल, क्योंकि वो भी फ्लेक्सस को स्टिमुलेट कराएगा, लेकिन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द एक्सटेंसर्स खत्म हो गया। तो फिर क्या है, बोथ फ्लेक्सर्स एंड बोथ एक्सटेंसर्स विल बी एक्टिंग ऑन द सेम जॉइंट, आईपी जॉइंट जैसे बताया, रिस्ट जॉइंट बताया, एल्बो, कोई भी जॉइंट पे you have like both flexors and extensors, if both are getting stimulated, तो फिर क्या होगा भाई, इस रिस्पॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाएगा, स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन मसल्स हो जाएंगे। ठीक है, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा, और इनफैक्ट क्वेश्चन के पर्पस के हिसाब से भी रट सकते हो, समझ सकते हो, बट मेक श्योर इफ यू अंडरस्टैंड थिंग, दिस विल हेल्प यू अ लॉन्ग टाइम। पूरा मेडिसिन एंड सर्जरी में भी, पीडियाट्रिक्स में भी काम आएगा। एंड अभी भी ये कंप्लीट नहीं है इफ यू डोंट रीड द फिजियोलॉजी ऑफ दिस
upper motor and low motor neurons. I have like tried to convey from the anatomical point of view, but both nervous system in anatomy and physiology, if you read, you know, side by side, both together, then it will help you more. Okay. So I think time is up for today, and